चार्ल्स डिकेन ने लिखी हुई बहुत अच्छी स्टोरी 8th स्टैंडर्ड के लिए मलबेरी पब्लिकेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका हिंदी, इंग्लिश, एक्सप्लेनेशन, एनिमेशन सब देखेंगे, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। कर लीजिए और देखते रहिए ऐसे ही। A Tale of Two Cities. Monsieur Manet, do you remember nothing of me? Asked Mr. Lorry. The shoe dropped to the ground, and he sat looking fixedly at the questioner. Monsieur Manet, Mr. Lorry continued, do you remember nothing of this man? Look at him. Look at me. Is there no old banker, no old business, no old servant, no old time rising in your mind, Monsieur Manet? As the captive of many years sat looking fixedly, by turns, at Mr. Lorry and at Defarge, some long-forgotten memories seemed to gradually force themselves through the black mist that had fallen on him. But they were soon clouded over, and then they were gone. A gloomy darkness fell on him again. With a deep, long sigh, he took the shoe up and resumed his work. Lucy moved from the wall of the garret, very near to the bench on which he sat. Not a word was spoken, not a sound was made. She stood, like a bright spirit, beside him, and he bent over his work. Then, as he reached down to pick up an awl, his eyes caught the skirt of her dress. He raised them and saw her face. He stared at her with a startled look, and after a while his lips began to form some words, though no sound proceeded from them. By degrees, in the pauses of his quick and labored breathing, he whispered, "What is this? Who are you?" Too overcome with emotion to be able to speak, she sat down on the bench beside him. He laid the awl down softly as he sat staring at her. Her golden hair, which she wore in long curls, had been hurriedly pushed aside and fell down over her neck. Advancing his hand by little and little, he took it up and looked at it. "What is your name, my gentle angel?" Lucy fell upon her knees before him and put her hands in his. "Oh, sir, at another time you shall know my name, and who my mother was, and who my father, and how I never knew their hard history. But I cannot tell you at this time, and I cannot tell you here. All that I may tell you, here and now, is that your agony is over, and that I have come here to take you from it, and that we go to England to be at peace and at rest. I pray you to bless me. Oh, my dear father." His gold white head mingled with her radiant yellow hair, which warmed and lighted it as though it were the light of freedom shining on him. तो आपने देख लिया चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखी थी ये जो द शू मेकर है। एक्चुअली ये जो है ये एक अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इसमें से लिया गया द शू मेकर ये स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है। यहाँ पे देख सकते हैं एक जो शूज़ बनाने वाला जो बूढ़ा सा आदमी बैठा है और दो जेंटलमैन वहाँ पे खड़े हैं और वो उनसे पूछ रहे हैं कि मंसूरी मैथ्यू जो आप यहाँ पे आप हमें देख के पहचानिए कि हम कौन हैं, आपको हमें देख के कुछ तो याद आ जाएगा। तो उनके हाथ से वो शूज़ जो बना रहे हैं वो नीचे गिर जाता है। वो आदमी बार बार मिस्टर लॉरी जो है वो बार बार पूछते हैं कि मेरी तरफ अच्छे से देखिए, शायद से आपको कुछ तो मेरी तरफ देखने से याद आ जाएगा। और वो बार बार पूछते हैं कि एक ओल्ड बैंकर जो है, बिजनेसमैन है, नहीं तो सर्वेंट होगा, नहीं तो आपने किसी के गरीब बच्चे को मदद की होगी, कोई ऐसा पुराना सा चीज़, कोई पुरानी सी आपके मन के अंदर कुछ तो चीज़ें होंगी जिसे मुझे देख के आपको याद आ जाएगा। और वो बार बार उन्हें पूछ रहा था, लेकिन वो आदमी ने एक बार उनकी तरफ देख लिया।
फिर वो उनकी चेहरे की तरफ थोड़ी देर तक वैसे ही देखता रहा और मिस्टर लॉरी जो है, एंड्रयू फॉक जो है, वो एक दूसरे की तरफ देख रहा है और इसने दोनों को देख लिया। फिर अपने अपने काम में लग गया। तो वो भूल ही गया कि क्या चालू था। उसने आंखें बंद कर दी और अपनी जो मेमोरीज है उसमें वो ढूंढने लग गया था कि ये कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। और तभी उसने अपनी आंखें खोल के देखा तो उसके सामने एक अंधियारा सा छा गया था और उस अंधियारे में वो अपने जीवन की हकीकत को, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका था, वो पास को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा सा आदमी था, वो ज़्यादा याद नहीं कर सकता था, तो अपने अपने काम में फिर से लग गया। फिर से उसने अपने शूज़ जो बना रहा था उसे उठा लिया और उसको वो सिलने का काम करने लग गया था। एक बहुत ब्यूटीफुल लूसी नाम की जो लड़की है वो वहीं पे खड़ी है। वो आगे और आगे आ जाती है। उसकी सुंदरता वर्ड में बताना बहुत मुश्किल है। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो कुछ भी फीलिंग उसके मतलब नहीं थी। वो बहुत प्यार से उस शूज़ बनाने वाले आदमी को देख रही थी। वो वैसे ही खड़ी थी और एक अजीब सी, मतलब एक देवता बनते हैं, जैसे परी होती है, जैसे वैसे फीलिंग उसकी तरफ देख के आ रही थी। शू मेकर का ध्यान जब गया, कैसे गया, तो वो शू नीचे देख के बना रहा था, तभी उसका ध्यान स्कर्ट की तरफ गया। स्कर्ट से फिर उसने एक एक चीज़ें ऊपर 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 देखना शुरू कर दिया। तो जब उसने उसके चेहरे के, लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया था। और फिर उसने वो लड़की की लिप्स की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कुछ तो अपने मुंह से कुछ वर्ड्स वो पुटपुटाया, बोला, लेकिन ऐसे वर्ड्स बोला कि वो किसी को सुनाई नहीं देंगे, इतने धीरे से वो बोल रहा था। वो अपनी आंखों से एक परी को देख रहा था, एक एंजल को, देवता को देख रहा था, जो कभी उसने सपनों में भी नहीं देखी होगी। इतनी ब्यूटीफुल लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो उसे पूछता है, ये क्या है, ये कौन है, आप कौन है ऐसे। तब वो जो लड़की है, वो बहुत ब्यूटीफुल लड़की, वो चल के उस शू मेकर के पास आके बैठ जाती है और बैठने के बाद वो शू मेकर फिर अपने हाथ में जो शूज़ है उसको पकड़ के एक बार उस लड़की को देखता है और फिर वो अपने वो शूज़ को उठा के हुए एक लड़की के जो बहुत गोल्डन कलर के जो बाल है उसकी तरफ वो देखता रहता है। जो बाल है वो कर्ली है। वो लड़की अपने बालों से हाथ ऐसे घुमाते हुए वो बालों को अपने नेक पे डालती है। तो शू मेकर जो है वो उन गोल्डन बालों को अपने हाथ में लेके उसे टच करता है, जैसे कि उसे फील करना है कि ये सपना तो नहीं है, ये हकीकत है, इसलिए शायद से। और वो बोलता है कि ओह कितनी सुंदर परी हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की उठती है और फिर वो अपने हाथ से उस शू मेकर के हाथों को पकड़ लेती है और फिर वो बोलती है कि सर, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी माँ कौन है, मेरे पापा कौन है, ये बताने का टाइम अब नहीं है। ये टाइम तो बिल्कुल नहीं है। मेरी हिस्ट्री क्या है, आपने क्या क्या काम किए हैं, कितने काम किए हैं और मैंने क्या काम किया है, मैंने कितने हार्ड टाइम देखा है, ये बताने का ये टाइम नहीं है। और ये जगह भी वो नहीं है कि जहाँ पे मैं आपको सब बता सकूँ। लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो टाइम आ गया है कि आपके सारे दुख दर्द, आपकी सारी चिंताएं अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैं आपको मेरे साथ लेके जाने वाली हूँ इंग्लैंड में, जहाँ पे हम बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत पीसफुली रहेंगे और आराम से रहेंगे। ये जो चिंता, ये जो टेंशन आपके दिमाग में अभी है, ये सब अब मिट जाने वाला है। और प्रेयर कीजिए मेरे लिए, आपके लिए। और वो इतना बोलते हैं कि मेरे प्यारे पापा, फादर, पापा, ऐसे बोलते ही वो उस शू मेकर को गले लगा लेती है
और उसकी वाइट कलर की जो दाढ़ी है वो उसके गोल्डन बालों के ऊपर वो रखते हुए, उसकी गर्माहट को महसूस करते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और एक सुकून सा पा लेते हैं। बेटियां होती ही ऐसी है, वो धन दौलत देती नहीं देती ये भगवान को ही पता है, लेकिन वो सुख देती है। जब गले लगती है तो पापा के दिल को चैन राहत मिल जाती है। अगर ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखती है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत आभारी हूँ।